Hello everyone, children. I hope all of you are fine and safe at your place. So let's start. Children, this is our fourth video of chapter 1 French Revolution, and so far we understood we have covered up to page number 8, the outbreak of the revolution, right? uh, Now we will start from the last paragraph from this page. We have gone through on 20th June 1789 the representatives of the third assembly, third estate. Basically they assembled on the grounds of Versailles, राइट जहाँ पे कि हॉल ऑफ एन इंडोर टेनिस कोर्ट जहाँ पे वो कलेक्ट हुए अंडर द लीडरशिप ऑफ मिराबू एंड अबेसियस. यू कैन सी इन दिस इमेज इट हैज़ बीन ड्रॉन बाय दी जैक्स लुइस डेविड. यहाँ पे आप देख सकते हो थर्ड एस्टेट के जो लोग हैं वो टेनिस कोर्ट में कलेक्ट हुए, राइट. वहाँ पे उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की. आफ्टर द डिस्पर्स they were ready to prepare or draft a constitution for France where they will limit the powers of the monarchy system. Understand? So in this way this event took place, but due to this agitation, this event, monarch was afraid. He became a little scared of these situation, right? So you can see in this image. यहाँ तक हम cover कर चुके हैं. We will start from this topic. In the countryside, rumors spread from village to village that the lords of the manor had hired bands of brigands who were on their way to destroy the ripe crops, right? So what is the meaning here, children? जब 1789 में बहुत ज़्यादा कंडीशंस वर्स्ट हो चुकी थी, पीपल वर they were asking for bread. They want the price of the bread should be reduced and everybody should get the food. But king was not aware and aware of the worst situation, and he was even not bothered about the situation, okay. And at the same time the king gave the order the troops to move into Paris, and finally on 14th July the agitated crowd stormed and destroyed the Bastille Palace. ठीक है, तो यहाँ तक ये घटना हो चुकी थी. उसके बाद सिचुएशन ये हुई कि जो किंग था, ऐसी सूचना हम कह सकते हैं कि लोगों को मिली कि ये एक र्यूमर ही था एक तरीके से. लोगों को ये लगने लगा कि जो किंग हैं उन्होंने ऐसे लोगों को, ऐसे ग्रुप को, बैंड्स ऑफ ब्रिगेड्स मीन्स ऐसे लोगों को अपॉइंट किया है जो कि घर घर जाके विलेज में जा कर के लोगों की जो हार्वेस्ट है उसको डिस्ट्रॉय करने वाले हैं. और ये लोग जो हैं वो मैनर्स में रहने वाले, मैनर्स वो होते थे स्टूडेंट जो कि फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे, वो बड़े बड़े हवेलियों में, विलास में रहते थे, उनको हम मैनर कहते थे, ठीक है. तो वहाँ से ऐसे लोगों को भेजा गया है जो उनकी क्रॉप्स को डैमेज करने के लिए भेजे गए हैं. Understand? So here the people, the peasants were afraid, right? They looted hoarded grain and burnt down documents containing records of the manorial dues. तो ऐसे मैनर्स में रहने वाले जो लॉर्ड्स थे उनके पास लैंड का रिकॉर्ड था, टैक्स का रिकॉर्ड था, ठीक है, क्योंकि वो फ्यूडल लॉर्ड्स थे. तो उन्होंने क्या किया, ऐसे पेजेंट्स ने उनके घर पे अटैक करके जितने भी होर्डेड ग्रेन्स थे, जितनी ग्रेनरी इकट्ठी करके रखी थी उसको उन्होंने लूट लिया, और जो रिकॉर्ड थे लैंड के उनको भी लूट लिया और कुछ को जला भी दिया. A large number of nobles fled from their homes, many of them migrating to neighboring countries. So इस तरीके से विलेजेस में कंडीशन बहुत वर्स्ट हो गई, और जो नोबलिटी ग्रुप के जो लोग थे, जो मैनर्स में रहते थे, चटॉक्स में रहते थे, उन्होंने अपने अपने घरों को छोड़ करके भागना शुरू कर दिया और इवन वो दूसरे कंट्रीज़ में जा कर के रहने लगे, राइट. तो इससे क्या हुआ, एक तो मैनर्स जो है वो खाली हो गए, और जो उनका सिस्टम था टैक्सेशन का, जो रिकॉर्ड था, लैंड के जो रिकॉर्ड थे वो स्पॉइल हो चुके थे, अब कोई रिकॉर्ड नहीं बचा था, राइट. सो फेस द पावर ऑफ द रिवॉल्टिंग सब्जेक्ट, लुइस 16 फाइनली accorded recognition to the National Assembly and accepted the principle that his powers would from now on be checked by the Constitution. So ऐसी कंडीशन को, लोगों के एंगर को देखते हुए, लोगों के डिसकंटेंट होते हुए देख जो लुइस 16 था उसने ये अनाउंस किया कि now he will accept the principle that his powers would from now on be checked by the Constitution. So in this way
On the night of 4th August 1789, the Assembly passed a decree abolished the feudal system of obligations and taxes, and the members of the clergies too were forced to give up their privileges. ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो 4 अगस्त 1789 को क्या किया, जो किंग था उन्होंने फ्यूडल सिस्टम को जो है वो ख़त्म करने के लिए डिक्लेयर किया। जो थर्ड असेंबली थे, थर्ड एस्टेट ग्रुप था, उन्होंने एक ऐसा एक्ट पास किया विच एबॉलिश द फ्यूडलिज्म सिस्टम। ठीक है, एबॉलिशमेंट ऑफ फ्यूडलिज्म सिस्टम कर दिया गया। एंड जितने भी प्रिविलेजेस जो मैनर्स को, जो फ्यूडल लॉर्ड्स को दिए जाते थे, वो फिनिश कर दिए गए। ठीक है, सिंस द बर्थ दे वर गेटिंग सो मैनी प्रिविलेजेस, अब ऐसा कह दिया गया कि अब किसी भी तरीके का कोई भी प्रिविलेज क्लर्जीज को नहीं मिलेगा। Even tithes were abolished and land owners, those who were owning the church, right, that were confiscated। जितने भी लैंड जो चर्च के अंडर में थे, जो मैनर्स के अंडर थे, वो लैंड उनसे वापस ले लिए गए। ओके, और वो लैंड जो है वो गवर्नमेंट ने ऑक्यूपाई कर लिया, वो गवर्नमेंट के अंडर में चले गए। राइट, एज अ रिजल्ट द गवर्नमेंट एक्वायर्ड दीज एसेट्स वर्थ एटलीस्ट 2 बिलियन लीवर्स। सो यू कैन अंडरस्टैंड हियर कि यहाँ पे जो लुई 16 था, वो लोगों के एजिटेशन, लोगों के एंगर से इतना ज़्यादा डर गया कि उसने जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को अडॉप्ट करने के लिए कहा थर्ड एस्टेट के को कि जितने प्रिंसिपल्स थे उनके कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे एग्री किया कि वो फ्यूडलिज्म सिस्टम को अबॉलिश कर देंगे और टैक्सेस को भी हटा दिया जाएगा। जितनी भी लैंड जो है वो फ्यूडल लॉर्ड्स के पास है, चर्च के पास है, वो सब जो है वो थर्ड एस्टेट एक्वायर्ड कर लेगी। इस तरीके से 2 बिलियन लीवर्स का जो है वो एसेट गवर्नमेंट के अंडर में आ गया। टीथेस टैक्स जो चर्च लेते थे, जो चर्च जो थे वो एक्सट्रैक्ट करते थे रिलीजियस टैक्स, उस टैक्स को भी अब हटा दिया गया। Now look at the next section, that is 2.1. France becomes a constitutional monarchy. After this incident, children, the National Assembly completed the draft of the constitution in 1791। ठीक है, 1791 में जो थर्ड एस्टेट थे उन्होंने अपने ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट कर ली। and its main objective was to limit the powers of the monarch। ठीक है, जो मोनार्की सिस्टम था उनकी पावर्स को कंट्रोल में करना था, उनकी पावर्स को लिमिट कर देना था, लिमिटेड पावर्स ही उनको दी जाएगी और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो है वो स्टैब्लिश हो गई। दैट इज़ द मीनिंग हियर, फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इन 1791। ठीक है, 1791 में फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो है वो इस्टेब्लिश हो गई और ये एक टर्मोइल था, एक तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन था फ्रांस का, जहाँ पे कि इतना स्ट्रांगली एक मोनार्की सिस्टम इस्टेब्लिश था, तो लोगों ने, आम जनता ने जो है वो तख्ता पलट करके एक तरीके से यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो है वो इस्टेब्लिश की। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन, यू नो, द पावर वॉज सेग्रीगेटेड। इवन द पीपल गॉट द सफरेज ऑल्सो, सफरेज सिस्टम जो है वो इंक्लूड किया गया एंड द पावर्स वर लिमिटेड, इट वॉज डिवाइडेड, पावर को जो है वो शेयर्ड कर दिया गया। शेयर्ड का मतलब ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, इट वॉज डिवाइडेड in between legislature, executive and judiciary. This made France a constitutional monarchy. Okay, a new political system was established according to this constitution. नाउ द पावर वॉज शेयर्ड, कोई भी पावर जो है किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन के हाथ में नहीं रहेगी। पीपल हैव द सफरेज, दे हैव द राइट टू वोट, नाउ दे कैन पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ द representatives of the government. You can see in this image, it is given on page number 9, where the power is divided in between judiciary, executive and legislature. So who were the legislature, children? Here you can see the legislature body was the National Assembly, which were included 745 members. Okay, and those who selected this National Assembly, it included 50,000 men. They were controlling the executive, the king, as well as the ministers. Okay, and the judiciary was separately working, they were working as independent body. Okay, and here some rules were there, certain active members were entitled to vote, about 4 million of population were active members. ठीक है,
and passive citizens, no voting rights were given to passive citizen. There were 3 million men, women, children and youth, those who were less than 25 years of age, right, they were passive citizens. Okay, इसके और भी अलग provisions थे active and passive citizens के, that we will go through in next paragraph. You can see the Constitution of 1791 vested the power to make laws in the National Assembly, which was indirectly elected. ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने वाले जो असेंबली थी, नेशनल असेंबली, जो कि लेजिस्लेटिव बॉडी थी, विच वॉज इनडायरेक्टली इलेक्टेड, उसको इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता था. एंड द सिटीजन्स वोटेड फॉर अ ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स who in turn choose the assembly. Not all citizens got this right, had the right to vote. सभी लोगों को वोटिंग का राइट नहीं दिया गया था. सिर्फ वो 25 ईयर्स के जो मेन थे, ठीक है, 25 ईयर्स एंड अबव, दोज हु पेड टैक्सेस इक्वल टू एटलीस्ट 3 days ऑफ लेबरर्स. ठीक है, जो 3 days के लेबर के बराबर था. यानी कि जो 25 ईयर्स के जो यूथ्स थे एंड अबव, राइट, 25 ईयर्स एंड अबव जो लोग थे उनको वोटिंग का राइट दिया गया. और उन लोगों को राइट था वोटिंग का जो कि अपने 3 days के लेबर के इक्वल जो वेजेस दे सकते थे. दे वर कंसिडर्ड एज एक्टिव सिटीज़न. ठीक है, यानी कि वो 3 days का जो वेज है वो एज अ टैक्स दे सकें, उन लोगों को एक्टिव सिटीज़न माना गया. यानी कि जो 25 ईयर्स के हों और एटलीस्ट 3 days के लेबर के जो वेजेस होते हैं वो पे कर सकें. दैट इज़ दे वर एंटाइटल्ड टू वोट. ठीक है, उन लोगों को ही वोटिंग का राइट दिया गया. The remaining men and all women were classed as passive citizen. ठीक है, जितने भी remaining members थे और वुमेन्स थे, जैसे कि ओल्ड सिटीजन थे और वुमेन थे, चिल्ड्रन थे, they were considered as passive citizen. To qualify as an elector and then as a member of the assembly, a man had to belong to the highest bracket of taxpayer. ठीक है, एज अ इलेक्टर, किसी भी मेंबर को इलेक्टर बनने के लिए उनको जो है वो हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर में इंक्लूड होना पड़ता था, तब वो एक्टिव सिटीज़न हो सकते थे और तब उनको वोटिंग का राइट मिलता था. ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की स्टूडेंट्स इस्टेब्लिश किया गया आफ्टर एबॉलिशमेंट ऑफ मोनार्की सिस्टम, वो प्योरली कॉन्स्टिट्यूशनल बेस्ड मोनार्की सिस्टम नहीं था, लेकिन एक स्टेप फॉरवर्ड किया फ्रांस के लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे जो है वो गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, राइट. तो यह अभी शुरू में तो बहुत पूरी तरीके से वुमेंस को राइट टू वोट नहीं दिया गया, एक्टिव और पैसिव सिटीजन्स में डिफ्रेंशिएट किया गया, लेकिन बाद में जा कर के बहुत स्ट्रगल के बाद यहाँ पे डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हुई, जहाँ पे कि सभी को इक्वली राइट टू वोट मिल जाता है. Now you can see in this image on page number 10, it is given the declaration of rights, declaration of human rights. So basically the constitution of France, जो पहला constitution फ्रांस में बनाया गया, स्टूडेंट्स आप देख सकते हो ये चार्टर ऑफ बिल है जो कि सभी कंट्रीज़ ने अडॉप्ट किया है. बहुत सारी कंट्रीज़ ने हैं, कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं लेकिन कुछ डिफरेंसेस भी हैं. ठीक है, तो द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विद डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीज़न. ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो सोर्स दिया हुआ है, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीज़न. तो बेसिकली ये क्या है, दिस इज़ द चार्टर ऑफ बिल्स. राइट्स सच एज राइट टू लाइफ, सबसे पहला राइट जो दिया गया वो राइट टू लाइफ दिया गया, जहाँ पे ये कहा गया कि जो लोग हैं जब से वो बॉर्न होंगे तभी से उनको जो फ्रीडम है, राइट टू लाइफ है, वो मिलेगी. ठीक है, और इसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता. You can see it is written here, men are born and remain free and equal in rights. Okay, and apart from that they were getting freedom of speech, freedom of opinion, equality before the law, and were established as natural and inalienable rights. ठीक है, ये नेचुरल राइट्स जो हैं वो कंसीडर किए गए और सभी के लिए सेफ्टी, सभी के लिए सिक्योरिटी की बात जो है यहाँ पे कही गई.
right? These rights belong to each human being by birth and could not be taken away. ये सभी राइट्स जो हैं वो सभी को बाय बर्थ मिलेंगे और इन्हें नेचुरल राइट्स कहा गया है, ठीक है। नेचुरल राइट्स यानी कि ये अपने आप ही स्वतः ही लोगों को मिल जाएगा, किसी को कहने की ज़रूरत नहीं थी। तो यू कैन सी इट इज़ रिटन हियर एवरीथिंग। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगैन विद द डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन। Rights such as the right to life, freedom of speech, freedom of opinion, equality were established as natural and inalienable right. Okay, it was the duty of the state to protect each citizen's natural rights. और ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है, ये स्टेट की ड्यूटी है कि वो हर किसी के राइट को प्रोटेक्ट करे, हर किसी की सिक्योरिटी, हर किसी को हम बेसिक ह्यूमन राइट्स जो हैं वो मिलने चाहिए सिंस देयर बर्थ। ओके, इवन दे गॉट द राइट टू फ्रीडम और फ्रीडम ऑफ स्पीच, ओके, इक्वालिटी बिफोर द लॉ। सो दिस वाज अ वेरी important transformation or change in French society. First time they got the constitution and the basic human rights. I think you are clear, all of you. Please go through all these human rights which is written in the blue box. आप ये सारे rights को पढ़ेंगे, यहाँ पे 17 rights दिए हैं along with the source B. We will take up the next topic in next video. That's all for today. Thank you all of you.